Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Manu Issue ACC classes. So this is your Manu Issue, and first and foremost, happy Diwali and Chhath Puja to everyone. So festival are on the way, right? Okay, so in today's video, I'm going to discuss the question that I have been received from one of my viewer, and her name is Sakina. So she had sent me lots of question, and I'm going to solve one question in each of the video. So I'm just recording the video because what I thought, rather than giving answer or describing the things to particular student, it will be benefit if I will make a video and upload to my channel, so it will benefit to the multiple student, right? So as I said, and I have been made video in previously as well, that in case you want me to discuss any specific question topic, do let me know in comment box, or you can text me anywhere, like on the social media, like Instagram, Facebook, Twitter, and Telegram, and Quora, wherever you want. And now very soon I'm going to create my WhatsApp channel as well, because lots of students were asking for that. So I'm in the process to get it done, and once it will be done, I will share the link through my any of my social media ID. Right? So do let me know in case you want me to discuss any question, any topic in detail. I'm here to help you out to make your ACC journey smooth, right? Okay, so in today's question, okay, this question is particularly from the MA F2 and from the BPP kit, right? So she has sent me this question, and she will talk while solving it. Let's read the question and let's try to solve it along with me. What the question says, the cost of the factory maintenance department for C company appeared to have a variable element dependent upon the number of units produced. So, the fixed element of this cost steps up when 20,000 or more units are produced. At an activity level of 22,000 units, the fixed element of the cost is 25,000 and the variable cost per unit is constant. The volume of production, total cost they have given out. What would be the total cost for 90,000 unit and total cost for 21,000 unit? So what the question says, that there is a company, C company, and who used to calculate the cost for the maintenance department, factory maintenance department. And what this says, that the cost for the variable cost variable elements it's totally depend on the number of unit produced, right? And so what does this mean? The more the number of units will produce, the more will be the variable cost, right? And they also says that the fixed element of the cost steps up, means like up to 20,000 below, it's a other fixed cost. But if the company will produce 20,000 or more unit, and in that case fixed cost is going to be increased, it will be no more constant. Right. And what they say is that activity level of 22,000, the fixed cost is 25,000. Now, one more thing that you need to be noticed, they has given us the fixed cost for the activity level of 22,000. Right. And what they say is, up to below 20,000 units produced, the fixed cost will be different, but the fixed cost will increase once the 20,000 or more unit will produce. So ये जो 22,000 यूनिट का फिक्स कॉस्ट दे हैव गिवन, ये आपका इंक्रीज वन फिक्स कॉस्ट है, मीन्स आफ्टर 20,000 यूनिट वाला. So below 20,000 unit will be something different fixed cost, right? And variable cost per unit is constant. आप जितना भी यूनिट प्रोड्यूस करो, it will be constant. Let me brief this in the Hindi as well. So basically कंपनी है, C कंपनी, उनका एक फैक्ट्री मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, एंड इस फैक्ट्री मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का कॉस्ट किस बेसिस में कैलकुलेट होता है? तो उन्होंने वेरिएबल एलिमेंट जो है, वेरिएबल कॉस्ट है, वो क्या करते हैं, वो लोग डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ यूनिट कितना प्रोड्यूस हुआ, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता है. एंड ये कॉन्स्टेंट है, नो मैटर हाउ मच यूनिट द कंपनी विल प्रोड्यूस, बट ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कॉन्स्टेंट है. एंड फॉर द फिक्स कॉस्ट,
आपको पता होगा टोटल कॉस्ट किस चीज से बनता है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, राइट। सो फिक्स कॉस्ट जो है आपका अब बिलो 20,000 यूनिट जो प्रोड्यूस हो रहा है देर इज डिफरेंट फिक्स कॉस्ट, बट अबव 20,000 यूनिट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए फिक्स कॉस्ट अलग है, बिकॉज इंक्रीज हो रहा है। एंड जो 20,000 एंड 20,000 मोर यूनिट जो प्रोड्यूस होगा उसका फिक्स कॉस्ट दे हैव गिवन टू अस 25,000, एंड 18,000 का कितना टोटल कॉस्ट 200,000 given, and for the 22,000 to 45,000 they have given. So this is the basically a total cost. And what they ask, what would be the total cost for 19,000 unit and 21,000 unit? इसका कैलकुलेट करना है हमको, राइट। लेट्स कैलकुलेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बट बेसिकली पहले ये बता दो टोटल कॉस्ट कैसे बनता है हमारा। टोटल कॉस्ट विल बी आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्रोड्यूस्ड, एंड दिस विल गिव यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एंड देन वी विल ऐड फिक्स कॉस्ट, राइट। ये तो सिंपल है, समझ गई है। अब हम लोग बेसिक मैथ से स्टार्ट करते हैं, एंड मैंने इस क्वेश्चन को वेरी डिटेलली सॉल्व किया है बिकॉज जो भी लेमैन हो उनको समझ में आ जाए, मतलब लेमैन इन द सेंस जिनको कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है वैसे मैंने मतलब एक्सप्लेन किया है। बट बी रिमेम्बर वन थिंग, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू में, राइट। इतना डिटेल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बट वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन यू विल बी फैमिलियर विद ऑल दोज थिंग्स, सो उतना टाइम नहीं लगेगा। बट मैंने टाइम लेके ये वीडियो को सॉल्व किया है, ओके। बिकॉज बाद में फिर कमेंट आती है मैम आप तो इतने डिटेल में सॉल्व कर रहे हो एंड एग्जाम में तो हमको एमसीक्यू आएगा, इतना क्या मतलब रहा। सो आई नो यू नो द कॉन्सेप्ट, बट देयर माइट बी फ्यू अदर स्टूडेंट जिनको नहीं पता होगा, उनको नहीं पता समझ में आएगा ना, उनके लिए मैंने डिटेल कैलकुलेशन किया है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग यहाँ पे देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं दिया है और फिक्स कॉस्ट जो दिया हुआ है वो 22,000 यूनिट के लिए दिया हुआ है, राइट। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक जो मैथ्स में आई थिंक यू गाइज माइट हैव बीन स्टडी ड्यूरिंग द स्कूल टाइम, लेट्स एक्स विद द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड वाई विद द फिक्स कॉस्ट। स्कूल का है ना ये तो, ओके। इसको भी यही डाल दूं ना तो अच्छा होगा आई थिंक। ओके, ठीक है। सो नाउ फॉर 18,000 यूनिट वो लोग हम लोग को टोटल कॉस्ट दिए हैं, एंड व्हाट इज द टोटल कॉस्ट फॉर द 18,000 यूनिट। एक सेकेंड, हाँ, दे हैव गिवन 200,000, राइट। ओके, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट दे हैव गिवन फॉर द 18,000 यूनिट। अब ये जो टोटल कॉस्ट बना होगा तो ये हमारा टोटल कॉस्ट कैसे बनेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू द यूनिट प्रोड्यूस प्लस फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम लोग ने क्या माना, इट्स एक्स, राइट। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्रोड्यूस, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, इट्स 18,000, राइट। एंड देन वी विल ऐड द फिक्स कॉस्ट जो हम लोग ने y मान के रखा है, ठीक है। इससे हमारा टोटल कॉस्ट ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। ओके, सो नाउ अब सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के निकाले, सिंपल y ले तो इट विल बी 200,000 माइनस 18,000x। ये बेसिक मैथ है, स्कूल टाइम में सबने पढ़ा होगा, राइट। सो हम लोग ने 18,000 के लिए ये चीज कर लिया, और y क्या हमारा, इट्स अ फिक्स कॉस्ट, राइट। अब सिमिलरली वी विल डू दिस थिंग फॉर द 22,000 यूनिट एज वेल, ठीक है। Okay, 22,000, yeah. So total cost given is
245,000, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग ये बदल देंगे 22,000 अब यूनिट प्रोड्यूस हुआ है। बट इफ यू नोटिस वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 22,000 के लिए एंड दैट्स 25,000, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लीज इसको भी चेंज करने दो। नहीं नहीं, एक सेकेंड ना। तो 22,000 x इक्वल टू 245,000 माइनस, अब ये y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू हमारा 25,000 में हो जाएगा। Why? Because the question in question they mention up to activity level 22,000 the fixed cost is this, right? तो वो ये यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो ये यहाँ पे जाके माइनस होगा ना। मैं अभी के लिए y रख देती हूँ। ओके, और ऑल राइट। सो नाउ ये ऊपर से कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे हम लोग 245,000 माइनस 25,000 करेंगे बिकॉज इन क्वेश्चन दे ऑलरेडी प्रोवाइडेड द फिक्स कॉस्ट फॉर द 22,000 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। x क्या है हमारा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। सो डिवाइड बाय 22,000 करेंगे तो हमारा 10 पर यूनिट आया। एंड द क्वेश्चन सेज दैट कि वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट है हमारा। सो ये x जो हमारा, ये यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हुआ। सो इट विल बी सेम फॉर द वॉट एवर यूनिट कंपनी प्रोड्यूस। ये मतलब नहीं होगा हम लोग को, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, आई मीन टू से। ऑलराइट, सो नाउ अब हम लोग को 19,000 का यूनिट का कॉस्ट पता करना है, टोटल कॉस्ट, एंड 21,000 का, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट इसका निकाले तो ये हमारा फिक्स कॉस्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे y क्या है हमारा, फिक्स कॉस्ट, राइट। अब मैं फिक्स कॉस्ट क्यों निकाल रही हूँ, बिकॉज हमको 19,000 यूनिट का टोटल कॉस्ट निकालना है। लेट मी कॉपी दिस ऑल। So we are going to calculate total cost for 90,000. टोटल कॉस्ट हमको पता नहीं है, राइट। सो टोटल कॉस्ट क्या होता है हमारा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट प्रोड्यूस प्लस फिक्स कॉस्ट, राइट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल गया हमारा, वो क्या था हमारा 10 था, ऊपर में निकाला 10 इंटू यूनिट प्रोड्यूस। अब यूनिट प्रोड्यूस कितना है, 19,000, ठीक है, प्लस फिक्स कॉस्ट। अब तो फिक्स कॉस्ट चेंज होगी ना, बिकॉज द क्वेश्चन सेज अप टू, मतलब बिलो 20,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ तो फिक्स कॉस्ट इज डिफरेंट, मतलब अलग ही फिक्स कॉस्ट है। और जब 20,000 और मोर यूनिट प्रोड्यूस होगा तो हमारा फिक्स कॉस्ट स्टेप अप होगा, मतलब इंक्रीज होगा, है ना। तो इससे यही क्लियर होता है कि बिलो 20,000 यूनिट के लिए फिक्स कॉस्ट इज डिफरेंट एंड अबव 20,000 एंड अबव 20,000 यूनिट के लिए फिक्स कॉस्ट इज डिफरेंट। तो फिर ये किस कैटेगरी में आएगा, ये 18,000 वाले, बिलो 20,000 की कैटेगरी में। तो जो फिक्स कॉस्ट 18,000 वाले यूनिट के लिए लग रहा होगा वही फिक्स कॉस्ट 90,000 की भी लगेगा। तो ये कैलकुलेट करते हैं। तो वी जस्ट कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, राइट। उसी को यहाँ पे हम लोग पुटअप कर देंगे, 18,000 इंटू 10, राइट। सो हमारा फिक्स कॉस्ट जो 18,000 यूनिट के लिए लग रहा है ये 20,000 है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 इंटू 90,000 प्लस, अब फिक्स कॉस्ट ऊपर निकाला 20,000, राइट। ये ऐसे आए, $210,000। अब इससे क्या क्लियर होता है, आपका आंसर ए या सी होगा, बिकॉज 19,000 में 210 ए और सी में ही है। So now you can calculate for the 21,000 as well very easily.
21,000 और यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा 21,000, बट 21,000 के लिए फिक्स कॉस्ट क्या होगा 25,000, बिकॉज इन द क्वेश्चन दे सेड राइट 25,000 बोला था ना ऊपर में. यस, दे टोल्ड 25,000. या सो वी गॉट द 235,000 जो कि ऑप्शन अब हमारा ए होगा. सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन सबको. इन केस एनी डाउट रिमेनिंग डू लेट मी नो. आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बोल सकते हो वेरी गुड यू फील इजी. और सारी मेरी आईडी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल दिया हुआ है. यू कैन टेक्स्ट मी एनी ऑफ द सोशल मीडिया चैनल जो भी डिटेल है जहाँ पे आपको इजी लगे. बट डू लेट मी नो कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं, राइट? So thank you so much guys for watching this video and stay tuned with my channel for more video like this. So please don't forget to subscribe and hit the bell icon. Thank you so much. Have a good day.